Namaskar, dear students. Today I will teach you from Homecoming, written by Raju Parth Sarthi, that is prescribed in Rajasthan University's syllabus BA Part Third Year English Literature, paper first. The present poem from Homecoming is written by R. Parsarthi. R. Parsarthi, Rajgopal Parsarthi was born at Tirupurari near Trichy, Trichinapalli in 1934. He was educated at Don Bosco High School at, and Siddharth College, Mumbai, and at Leeds University, UK, where he was a British Council Scholar in 1963 to 1964. He was lecturer in English literature in Mumbai for 10 years before joining Oxford University Press in 1971 as regional editor in Chennai. He moved to New Delhi in 1978. He is associate professor of English and Asian Studies at Skidmore College in Saratoga Springs, New York. His works include poetry from Leeds in 1968, rough passages brought out by Oxford University Press in 1977, a long poem, and edited 10 20th century Indian poets published by Oxford University Press in 1976, which went into 16th impression only in 2002. His translation into modern English verse of 5th century Tamil epic, The Tale of Anklet, an epic of South Indian brought out by Columbia University in 1993. It has received a significant award, including the Sahitya Akademi Translation Prize in 1995 and the Association for Asian Studies, including Ramanujan Book Prize for Translation in 1996. Uh, if I resume as a poet person returns home, he thinks he is no longer for his former self. He watched evening blur and terrific to a pair of headlights. He finds himself quite tired. His face is uh, pressed against the window of expectations. The present poem from Homecoming Parsarthi talks about a man who is incapable of writing even a single line of poetry. He failed miserably as a creative writer but became a teacher critic. He got married and hence had to learn uh, and had to earn money in order to support himself and his family. He went to the wrong goods. He had not studied the Greek poets who would have taught him the futility of marriage and would have elevated his thoughts. Then he became a teacher and failed critic. This teacher critic writes reviews of the poems and other poets. He is invited to attend conferences and attend them. He has no talent. He earned a lot of money, especially by cunning or dishonest means. He writes criticism in a large measure of literature of the secondary kind of material. Parsarthi abuses him by calling them the son of a bitch.
Again, Parsarthi sarcastically calls him his eminence and wonders where he would be or he would been without the poets of the classical and modern world. ये प्रेजेंट पोएम होम कमिंग है। इसमें पार्थ सारथी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जो कि इवन एक लाइन पोइट्री के लिखने में अक्षम है, लेकिन वह क्रियाशील लेखकों और जो राइटर्स हैं उन मतलब उनकी आलोचना या आलोचक बन गया है। और ठीक उसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि उसने इन सबके मार्फत एक काफ़ी हद तक धन अरेंज कर लिया है, अर्न कर लिया है। उसने विवाह के इसलिए उसको अब परिवार का भरण पोषण के लिए धन की ज़रूरत होती है और धन कमाना पड़ता है। तो उसने यूँ कहेंगे कि एक रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए हैं, एक गलत देवी देवताओं की शरण ले ली है। उसने यूनानी कवियों का अध्ययन नहीं किया है जिनको उसको विवाह की उपयोगिता सिखा सकते एंड उसके विचारों को उच्चता प्रदान कर सकते। तब वह एक अध्यापक हो गया और एक आलोचक के रूप में असफल रहा। यह अध्यापक आलोचक अन्य कवियों की भांति बहुत समीक्षाएं लिखता है, कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेता है, निमंत्रित किया गया, आमंत्रित किया गया, उन्होंने भाग ली, उसमें प्रतिभा नहीं है। बट उसने धन बहुत चालाकी से अर्जित कर लिया है बेईमानी के साधनों से, और बड़ी मात्रा में कम महत्व की साहित्यिक सामग्री की आलोचना वाली सामग्री लिखता है। पार्श्वार्थी उसको कुतिया का पिल्ला कह करके गाली देते हैं। सो इस तरीके से एक ये व्यंग्यपूर्ण तरीके से लास्ट में उनको एमिनेंस श्रेष्ठ व्यक्ति भी कहते हैं और आश्चर्य प्रकट करते हैं कि वह प्राचीन और आधुनिक संसार के कवियों के बिना कहाँ होता। द प्रेजेंट पोएम होम कमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट by R. Parsarthi. Look at from homecoming. I am no longer myself as I watch the evening blur the traffic to a pair of above headlights. I return home tired, my face pressed against the window of expectations. I climb the steps to my flat only to trip over the mat outside the door. The key goes to sleep in my palm. Parsarthi open. Before to explain this poem, I would like to give the meaning of the difficult words. So here, the blur. Blur means it is uh, dull, which is not clear. Evening blur of traffic, pair of above headlights, that is some sort of to say कि जो पोइट हैं उनको ऐसा एक महसूस हो रहा है, अपने आप को मतलब ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सम सॉर्ट ऑफ Okay, student, the previous text was not prescribed in your syllabi. The present text is prescribed in your syllabus. So, come on to the text. I see him now sitting at his desk. The door is open. It is evening. On the lawn, the children play. He went for the wrong goods from the stars, and marriage made it worse. Hmm? He hadn't read Greek poets well. So start. It's from beginning, and the next one is. I think there is not difficult word. I see him now sitting at the desk. कि मैंने the poet here explains that Parsarthi opened the poem abruptly, and he in the evening time when the children are playing on the lawn, the critic is sitting on the desk in the open door at evening. uh, this fellow worshipped, huh? So he went for the wrong goddesses, the start.
मीन्स द पोइट हियर शेयर्स दैट कि उस व्यक्ति ने, उस टीचर ने जो ये सब कुछ हासिल करने का जो एक तरीका सर्च किया है, उस तरीके के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि वो व्यक्ति जो है रॉन्ग डायरेक्शन में चलेगा, उसने रॉन्ग गॉडेस को शायद उसने वर्शिप किया। दिस फेलो worshipped wrong gods from the beginning, and marriage made his position even worse, and marriage made his position worse कि उसका जो शादी हुई ना, उसने उसकी पोजीशन और ज़्यादा ख़राब कर दी। क्यों ख़राब कर दी? ही hadn't read the Greek poets well। आई थिंक उसने जो ग्रीक पोइट्स के हो बेहतर तरीके से स्टडी नहीं किया होगा, जो कि उसको बताते कि बेटर टू बरी अ वुमन रादर देन मैरी, कि एक वुमन से शादी करने से बेहतर है कि आप उसको दफना दो, उसको यानी कि कब्रिस्तान में उसको परमानेंट लेटा दो। इट मीन्स दिस इज नॉट द पोइट्स इंटेंशन, बट ही सेज दैट कि दोज पोइट्स हु राइट something about the other ones, though they have no intelligence in them, but बावजूद उसके they try to expose as if they are the great poet or the great writers, and anyhow they manage, and they earn great or the huge amount of money. So better to bury a woman देन अ मैरी। जो ग्रीक पोइट्स के अगर एक इनका ज्ञान अगर वो ले लेते तो वो निश्चित रूप से कि एक वुमेन को दफनाना ज़्यादा बेटर होगा रादर देन टू मैरी। नाउ द टीचर रिव्यूज वर्स। अब वो टीचर व्हाट ही इज डूइंग, ही इज रिव्यूइंग द वर्स रिटन बाय द अदर्स, जो अदर ग्रेट पोइट्स और राइटर्स के द्वारा लिखा गया है। अब उनके जो वर्क्स हैं उनको रिव्यू लिखे हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं। द टीचर critic took the teaching job to support himself and his family. He wrote the reviews of the poems composed by the other poets. He is invited in conferences. Look at in the next line, is invited to the conferences and attend them। उसको conferences के लिए इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, और उनको अटेंड भी करता है, वहाँ जाकर के पेपर प्रेजेंट भी करता है, और इनका रिव्यू ऑफ द बुक्स भी लिखता है। हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन, और कितने लंबे समय से उसने इस तरीके से इसको कंटिन्यू रखा है। हिम टू लर्न ही हैड नो टैलेंट, दो ही हैड नो टैलेंट, लेकिन उसने लंबे समय तक कंटिन्यू उस चीज़ को कैरी ऑन रखा है। एट ऑल नाउ ऑल दो वर्ड्स केम ईजी, बट अब क्योंकि उसने बहुत फिल्दी, बहुत हल्के क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है, रिव्यूज लिखना शुरू कर दिया है, तो वन कैन बी आर्टिकुलेट एक्सप्रेस अबाउट नथिंग, और वाज इट सिंपली, या सिंपल वे में, हिज गोल हैड लेफ्ट हिम, और उसका उस हिज गॉड हैड लेफ्ट हिम, शायद उसका जो इनर जो ब्यूटी है, उसका जो अच्छापन है, वो शायद कहीं पर चला गया है। द टीचर हेयर पार्थसारथी टेल समथिंग अबाउट दैट फेलो, दैट द क्रिटिक जो है टीचर क्रिटिक took up teaching job, and he to support his life and his family, he wrote the reviews of other poets and the writers, and he now is invited in various conferences and he attend them. He expresses his ideas easily, although he had no talent. He could express his ideas about nothing, or his god had left him. It means that he was not inspired by God or by his God. That is whatever he wrote or expressed is not inspired by the higher gods। के यहाँ पोइट का कहने का मतलब, पार्सार्थी जी का कहने का मतलब ये है कि वो दिन पर दिन उसने जो जैसे एज ही गॉट मैरिड उसकी स्थिति और बदतर हो गई है, और इसकी वजह से फिर उसने जो हल्की जो तरीका अपना लिया है धन को अर्जन करने के लिए, कॉन्फ्रेंसेज में जाना, वहाँ पर पेपर प्रेजेंट करना, रिव्यूज प्रेजेंट करना, और उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, वो भावना शून्य है, उसके विचारों में किसी तरीके की कोई लेट्स मतलब एक एक नयापन नहीं है। शायद उसको लगता है कि उसका जो हार्ट है उसको निकाल करके उसने बाहर रख दिया, उसको कोई अच्छे देवी देवता ने उसको प्रेरित नहीं किया, अर्थात वो कुछ भी लिखने वाला व्यक्ति है, लिखने के योग्य नहीं है, जो कि एक उच्चतर देवताओं के द्वारा उसको अपन ये कहेंगे कि एक प्रेरित किया गया है। नाउ पैडलिंग हिज bicycle glasses
He asks what it like to be a poet. I say to myself, the son of a bitch. Peddling. अब जो अब incapable of writing even a single, जैसे मैंने कहा कि single line of a poetry, he is incapable, but he writes the reviews of the poems written by the other great poets, and he attends the such conferences and so many things. So the Parsarthi call such people as the child of a bitch, because he makes a lot of money by criticizing the poets in the past, and he makes a lot of money, especially cunning, dishonest, and dishonest means with the blood of the dead poets. The peddling his bicycle glasses, अब वो अपने आप को और ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ा रहा है. He asked what it is लाइक टू बी अ पोइट. अब मेरे समझ में नहीं आता कि एक पोइट के लाइक इसके जो क्वालिटीज जो होनी चाहिए वो क्या उसके अंदर थी. तो मैं तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से एक बिच का मतलब बच्चा कहूँगा, कि एक कुतिया का बच्चे के रूप में मैं उसको कहना पसंद पसंद करूँगा. और उसके बाद भी देखिए ही सेड दैट कि fatten himself on the fleshes of the dead poets, और अब and lines in the pockets with their bloods from the fingerprints ओज ink पेपर्स. और अब जो आप देखेंगे कि फैटन्स हिमसेल्फ, अपने आप को इतना तुच्छ और हल्का बना लिया है, इतना घटिया या इतना गौण सामग्री, या इसको कहा जाए कि कमज़ोर टीका टिप्पणी करना उसने शुरू कर दिया ऑन द फ्लेसेस ऑफ द डेड पोइट्स. जो पास्ट पोइट्स हैं, जो ग्रेट पोइट्स हैं, जो उनके रिटर्न वर्क्स जो हैं ग्रेट पोइट्स के द्वारा. लाइंस इन हिज पॉकेट, अब वो कुछ एक वर्ड्स को जो है वो टीका टिप्पणी करता है विद देयर ब्लड्स फ्रॉम द फिंगर प्रिंट्स ऊजेज एंड इन द पेपर. अब उन्हीं के कुछ एक पर्टिकुलर जोन को ले लिया, और उसके बाद में ऊजेज मीन्स रिसाव, मतलब कि उसी को आगे बढ़ाना, उसी के ऊपर डिस्कस करना, उसके ऊपर पेपर लिखना अब उसने शुरू कर दिया है. एज ही स्क्वेट्स, अब जो है उसको ये कहेंगे कि आश्चर्य प्रकट करते हैं यहाँ पर पार्सार्थी जी, और बोलते हैं कि वो दब करके ऑन द डंग हीप, मतलब एक गोबर के ढेर की तरह, मतलब एक वेस्ट उन्होंने एक अपना एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसमें बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे सेमिनार्स ज्वाइन करके उसने बहुत कुछ उन्होंने लिख दिया. ऑफ द ओल्ड टेक्स्ट एंड ऑब्सक्योर कमेंटर्स, और उसके ऊपर मतलब ऊपरी परत के रूप में, मतलब इसको कहा जाए कि लेस नॉलेज वाले ऑब्सक्योर जो कमेंट्रीज हैं, जिनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, वो सब कुछ उसने लिख दिया. हिज आइज़ पील ऑफ, मेरे को लगता है कि उसकी जो आइज हैं वो तो पूरी तरीके से पील ऑफ है, पूरी तरीके से ऊपरी परत हो गई हैं, उतार दिए उसने. उसके उसके जहन में ये चीज़ें हैं ही नहीं. उसको तो ये है कि जो पोइट्स ने लिखा है उसके ऊपरी ऊपरी जो टच है उसको ले लिया, और उसके बाद में समथिंग उसके बारे में राइट डाउन कर दिया. वेयर वुड हिज एमिनेंस भी, अब यहाँ पर पार्श्वार्थी बहुत सुंदर सा एक आयरनी के रूप में बहुत कटाक्ष करते हैं, और बोलते हैं कि एमिनेंस में भी वेयर वुड हिज एमिनेंस, इसमें उसकी श्रेष्ठता कहाँ है. बट फॉर द पोइट हु स्प्लसेस अबाउट, बल्कि ये तो कहेंगे कि एक बहुत छोटापन है, मतलब हल्कापन है इन हिज हेलिस्पन और बर्न इन द जावा सी. ओल्ड पोइट्स के बारे में बोलता है, वो प्राचीन और आधुनिक कवियों के बारे में वो बोलता है कि अपने भरण पोषण के लिए इसने अपने जो प्राचीन पोइट्स हैं उनका एक आलोचना लिख करके, उनके बारे में छीटा कसी करके, छोटी छोटी पार्ट उनके बारे में लिख करके, ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ ग्रेट वन. सच अ टीचर according to Parsarthi, he called them a teacher critic who criticized a large measures and basis of his criticism on the secondary kind of the materials on literature and obscure and less known commentaries. He is very observant and ever watchful. Parsarthi sarcastically calls him his eminence and wonder where he would be without the poet of the classical and the modern world. He supports himself by writing the criticism of the poetry of the classical and the modern poets. So here the excellency हैज़ नो मीन्स, एट मीन्स कि यहाँ पर तुच्छ रास्ते पोइट्स के द्वारा, नए जो क्रिटिक्स हैं उनके द्वारा अपनाया गया है, जो कि अनएथिकल है, और मॉरलिटी नाम की तो उनके अंदर कहीं कोई चीज़ है ही नहीं.